Welcome to class 6. So the three values that we learned in the class 6 are first is right. अब right में हमको तीन aspects देखने हैं. The first aspect which I taught you was that you need to write down your emotions. How are you feeling? See, sometimes what happens is you get too much attached in the drama of a situation. You need to rehearse your script very well. Sometimes you overtly emote to certain people. So to contain your thoughts, you need to write them down. Like when we are writing an email to someone, we use words, which are very polite by nature. Kindly do this for me, please help me out. But when we are expressing, sometimes what happens is we start talking, like all over the place. So whenever things are very important to you and you think that, you are doing it to protect your family, protect your relationship, you need to write them down. Not necessary that, like if there's a fight happening or perhaps if there's a discussion happening, you will go and, first write it down. But whenever it is possible, first write it down and see, what are your thoughts, observe your thoughts. The second thing that I want you to do is, I want you to create a journal, a book, a diary, whatever you want to create for yourself, in which every day you will write three things. First thing that you will be writing is, what am I grateful for? Every day God gives us an opportunity to be grateful about something. It can be simple food on your plate. Like I remember my grandmother had taught me one thing कि जब भी खाना देखो आप ये बोलो, तेरा भोग मेरा प्रसाद, शुक्र है भगवान तेरा, in the end of the meal. तो इसमें आप क्या कर रहे हो, आप भगवान को सबसे पहली बात है कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट? तो उसी तरह से आप है ना, कोई भी एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. भले आपका दिन बहुत ही बेकार गया था, फिर भी कोई भी एक चीज़ ढूंढो, उसका आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो. The second thing that you need to do is, you need to write that one thing which you did in a day and you could have done it better. Now it can be, like the way you spoke to your parents, the way you, like spoke to your kamwali bai or whatever. Just write it down. धीरे 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 आपका जो नेचर है फंडामेंटली चेंज होना चालू हो जाएगा, स्ट्रेस कम आएगा, एंड परहैप्स यू विल फील दैट देर इज अ इफेक्टिव मेथड, बेटर मेथड टू डील विथ थिंग्स. थर्ड इज, आई वॉन्ट यू टू राइट एन एफर्मेशन. दिस एफर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म, कोई भी टूटी फूटी भाषा हो सकती है. इट शुड हैव 3 points इन इट. ओके, तो कोई भी 3 point ले लो. ज़रूरी नहीं है कि आपको एफर्मेशन अच्छी तरह से इंग्लिश में ही लिखनी है. हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में, जो भाषा में आपको समझ पड़ती है वो लिखो. उसमें 3 अच्छी पॉइंट्स डालो. जो भी आपको स्ट्रेस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ टीनेज चाइल्ड एंड यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज गेटिंग इन टू रॉन्ग कंपनी और परहैप्स इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विद योर प्यूबर्टी, इज like likely to slip into wrong relationships, write it down saying that, like I thank God. एफर्मेशन पॉजिटिव लिखनी है. आई थैंक गॉड फॉर गिविंग माई चाइल्ड द विजडम. माई चाइल्ड चूजेस राइट कंपनी. थर्ड इज, आई नो यू आर प्रोटेक्टिंग माई चाइल्ड एवरी टाइम व्हेन आई एम नॉट अराउंड. तो क्या किया आपने, ये थॉट नेचर में डाल दी. ये आपका मैनिफेस्ट करेगा. आपका ट्राई करके देखो, ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है. Okay, so this is something which you need to write as an affirmation. This is just one example. Because I have a flair for writing, I can create my own affirmations. नहीं समझ पड़ रहा है, यूट्यूब पे या फिर बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. जो आपकी 3 words हैं जो आपकी प्रॉब्लम के, उसको एक सेंटेंस में डालने की कोशिश करो. जैसे मैंने बोला, कोई भी लैंग्वेज में डालो, वो एफर्मेशन बन जाएगा. ईजिएस्ट वे टू क्रिएट एन एफर्मेशन फॉर योर सेल्फ. द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट. WRIGHT राइट है यहाँ पर. मैंने यहाँ पर क्यों राइट का स्पेलिंग मॉडिफाई किया है, क्योंकि ये जो राइट का स्पेलिंग है ना, उसमें WR रॉन्ग का भी आ रहा है. आपके लिए जो राइट है वो मेरे लिए राइट नहीं हो सकता है. अगर आप किसी हिरन को पूछो, किसी डियर को पूछो, तो आपको वो बोलेगा कि लायन विलन है उसकी लाइफ का. अगर आप घास को पूछोगे ना, तो बोलोगे लायन प्रोटेक्टर है और डियर मेरी लाइफ का विलन है. तो हर इंसान ने अपनी लाइफ में एक है ना विलन अलग बना के रखा हुआ है. तो आपको क्या करना है,
Very simply, you have to understand that nobody is right or wrong into any situation. Maybe perhaps what they are operating out of is a different story than like yours. For example, आपने मुझे हाई लिखा, मैंने आपको हाई लिखा, राइट? आप मुझे प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो शायद मेरा हाय आपको हाय 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 लगेगा, और आप मुझे नहीं पसंद करते तो आपको लगेगा कैसे इससे रूखा लिखा हाय, इससे ज़्यादा बेटर लिख सकता था ना इंसान, क्योंकि आपकी इमोशंस मेरी तरफ चेंज हो गए हैं अभी, राइट? तो कोई भी इनसेंसिटिव नहीं होता, कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं होता. कभी कभी आपकी गट फीलिंग आपको सही बोलेगी. आई एम नॉट लाइक जजिंग हियर, बट समटाइम्स द सिचुएशन इज नॉट WRIGHT. तो ये राइट का प्रियम्बल समझो और उसको राइट एंड रॉन्ग के जजमेंट पे मत पढ़ो. द थर्ड इज विसल ब्लोअर. बी अ विसल ब्लोअर ऑफ योर ओन इमोशंस. ये जो राइटिंग का काम करोगे आप, एट द सेम टाइम कभी आप देखोगे घर के अंदर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है, सबसे पहली बात है, डू नॉट गो एंड ट्राई फिक्सिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड. एक सर्टन एज तक आप कर सकते हो, एक सर्टन टाइम तक आप कर सकते हो, पर कई बार क्या होता है कि हम लोग भी वो करीना कपूर की तरह बन जाते हैं क्योंकि मूवी के, एंड वी विल ऑल्सो लैंड अप इन टू थेरेपी और परहैप्स मेंटल हॉस्पिटल. तो हर चीज़ के अंदर कर्ता बनने की कोशिश मत करो. बी अ विसल ब्लोअर. Try to give your loved ones all the resources what are required to help them maintain their sanity. So this was my class for you for today.